بات تو یہ مولا علی شیر خدا، ذرا زندگی دیکھیں کیسی گزر رہی ہے۔ علی شیر خدا کی شان، آج دنیا میں جو سیدوں کا سلسلہ چلا یہ مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل پاک سے چلا۔ حضرات، مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کی شان پہلے میں مختصر یہ بیان کر دوں کہ یہ دونوں کا سنگم کیسے ہوتا ہے، ان دونوں کا ملاپ کیسے ہوتا ہے۔ جب میرے آقا جنگوں سے فارغ ہوئے، سوچا کہ لاؤ اپنے گھریلو معاملات میں مشغول ہو جاؤں، اس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فاطمہ کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، میرا رب میری بیٹی کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں گئے حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس میں اور کہا علی تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور نبی کی بارگاہ میں جا کر کے فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے کہو۔ حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں کہ جب ہم چند دن کے تھے نبی نے ہمیں گود میں لیا تھا، مکے میں ایک بار قحط پڑ گیا تھا اور ایسا سخت قحط پڑا تھا پیارے مسلمانوں کہ کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ حضرات اس وقت جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، میرے نبی نے کہا کہ کون ہے جو ان کے اوپر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ حضرت علی شیر خدا کو نبی نے اپنی گود میں لیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا علی آج سے میرے پاس رہے گا، علی آج سے میری صحبت میں رہے گا، علی آج سے میری تربیت میں رہے گا۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم چند دن کے تھے جب نبی نے ہمیں گود میں لے کر کے کہا تھا علی آج سے میرے پاس رہے گا، اب ہم کیسے جا کر کے نبی سے کہہ دیں کہ نبی فاطمہ کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں۔ دولت مکے میں چھوڑ کے آ گئے، پراپرٹی مکے میں چھوڑ کے آ گئے، سرمایہ مکے میں چھوڑ کر کے آ گئے، اب ہمارے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے مولا علی شیر خدا کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، علی شیر خدا جو لباس پہنے تھے اس کے علاوہ دوسرا لباس بھی نہیں تھا۔ مولا علی شیر خدا سے دونوں صحابی کہتے ہیں علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں، جیسی ضرورت پڑے گی ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی شیر خدا آئے نبی کی بارگاہ میں، اس وقت میرے آقا حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم کے کاشانہ رحمت پہ علی شیر خدا نے دستک دی۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت دروازے پہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا لاؤ دیکھوں تو صحیح کون ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ کہتی ہے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دروازے پہ مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، کہتی ہیں اندر آ گئے علی شیر خدا، نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اب علی شیر خدا میرے آقا کے پائے مبارک کے پاس میں بیٹھ گئے۔ علی شیر خدا سے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی شیر خدا نے کوئی جواب نہیں دیا، شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پائے۔ میرے نبی تو دل کے راز جاننے والے ہیں، میرے نبی تو دل کے خطرات سے واقف ہیں۔ ارشاد فرمایا علی تم فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو؟ سر ہلا کے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب نبی نے ارشاد فرمایا علی تم خوش ہو جاؤ، ابھی تم میرے دروازے پہ آئے بھی نہیں تھے کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا جسے میں نے پہلی بار دیکھا، اس فرشتے نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو بیت المعمور میں جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ جب تمام فرشتے جمع ہو گئے اللہ نے ایک فرشتہ جس کا نام احیا ہے اس سے فرمایا خطبہ دینے کے لیے، اور اس نے بڑا فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیا۔ اس فرشتے نے جب خطبہ دیا نبی کریم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کی موجودگی میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا عقد آسمان پہ باندھ دیا ہے، آپ اس کی رسم کو دنیا میں پورا کر دیجئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کون مولا علی شیر خدا ہے اور کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ اکبر، جن کے نکاح کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے کہ محبوب اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، جب یہ نکاح ہونے جا رہا ہے مدینے والے
मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए क्या है? अली शेरे खुदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तीन चीजें हैं, एक मेरे पास ज़िरा है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास में सवारी है, घोड़ा है। नबी ने इरशाद फरमाया, तलवार तुम्हारे काम की है और तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारे काम का है कि तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहती हो। ऐसा करो अली, जाकर के तुम ज़िरा को बेच करके आ जाओ। अब अली शेरे खुदा वो ज़िरा लेकर के जाते हैं। जैसे ही काशाना रहमत से बाहर निकले, बाहर उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। वो उस्मान गनी जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। कहते हैं, अली कहाँ जा रहे हो? कहा, अली शेरे खुदा ने ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। फरमाया, मेरे हाथ बेच दो। अली शेरे खुदा से उस्मान गनी ने वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीद ली। दिरहम और दीनार गिन करके दिए और ज़िरा अपने कब्जे में ले ली। और जब अली शेरे खुदा चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, अली आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है। अली इस मौके पे तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो अली, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। पता चला उस्मान गनी वो है जिनके लिए नबी फरमाते, मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह। अब आए मौला अली शेरे खुदा और आकर के नबी को सलाम किया। नबी ने फरमाया, ज़िरा बेच दी? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, ज़िरा तो है और पैसे भी हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, उस्मान ने खरीदी थी, पैसे भी दे दिए, ज़िरा भी दे दी। नबी के दस्ते मुबारक उठ गए दुआ के लिए। उस्मान गनी को बहुत सारी दुआएं दी नबी ने। अब नबी इरशाद फरमाते हैं, बिलाल जाओ और जाकर के मदीने में ऐलान कर दो, तमाम अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। अब बहुत गौर से सुनिएगा, एक पैगाम देने जा रहा हूं। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप फातिमा को जहेज नहीं देंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दीजिए, हम फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करके लाएं। नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा को जहेज दूंगा। अगर मैं अपनी बेटी फातिमा को जहेज दूंगा तो लोग इसे दलील बनाएंगे कि नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, हमें भी इतना जहेज चाहिए। नबी ने फरमाया, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, लोग मेरी उम्मत के गरीब बेटियों का क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने फरमाया, जो जरूरत का सामान था वो मंगाने के लिए नबी ने फरमाया। जरूरत का सामान क्या था? एक गद्दा था और एक तकिया था और प्यारे मुसलमानों 2 मिट्टी के घड़े थे और उसकी एक चक्की थी और कुछ मिट्टी के बर्तन थे, गिलास और प्लेट की शक्ल में। ए प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था, ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। इतना मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है कि आज के दौर में गरीब से गरीब इंसान उतना जहेज दे सकता है। अब बताना मकसद ये है कि अगर कोई अमीर सीना तान करके ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को फला गाली दी है, या कोई अमीर ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को जहेज में एसी और फ्रिज दिया है, अगर कोई अमीर ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला बादशाह ने अपनी बेटी को दिया, मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया, मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो ऐ गरीबों, गरीबी का रोना मत रोना, बल्कि सीना तान करके ये कह देना, ऐ अमीर कान खोल करके सुन ले, जितना तूने अपनी बेटी को दिया है, तूने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला वजीर ने दिया, तूने अपनी बेटी को उतना दिया जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया, तो सुन ले, मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। मेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। नहीं, अब जरा देखें अब ये निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। कैसा पाकीज़ा निकाह है जिसमें आसमान से फरिश्ते आए,
कितना मुबारक निकाह है जिससे आसमान से फरिश्ते उतरे। जरा सोचो तो सही, ये उसी निकाह का सदका है। नजर आते हैं जो चारों तरफ सही जमाने में, नजर आते हैं जो चारों तरफ सही जमाने में, ये किसका सदका है लोगों? अली जहरा की शादी का। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। नबी ने अब फरमाया कि हजरत उम्मे सलमा को कुछ दिरहम देते हुए, जाओ मेरी बेटी के लिए जरूरत का सामान खरीदो, खुशबू और जोड़े वगैरह का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर, अब ये निकाह होने जा रहा है। नबी मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। सहाबाए किराम ने अली शेरे खुदा को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। अली तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, अली तुम्हारे मकाम का जवाब नहीं, अली तुम्हारे मर्तबे का जवाब नहीं। ये मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका निकाह मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ है। अल्लाह अकबर, आज तो सुन्नत का दौर खत्म होता जा रहा है। आज हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते, आज हम नबी के फरमान पे अमल नहीं करते। नबी ने फरमाया है कि जो निकाह मस्जिद में होता है, अल्लाह ताला उस निकाह में बरकतें अता फरमाता है। आज निकाह सुन्नत तरीके पे कहाँ हो रहा है? आज हमारी शादियां देखो तो हमारी शादियां सुन्नत तरीके पे नहीं। आज हमारे यहाँ के निकाह सुन्नत तरीके पे नहीं। वजह क्या है कि आज हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। यही वजह है कि चंद दिन नहीं होते हैं कि कोर्ट कचहरी का नंबर आ जाता है, चंद दिन नहीं गुजरते कि तलाक की नौबत आ जाती है, चंद दिन नहीं गुजरते कि वहाँ तलाक की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। ऐसा मुबारक और अजमत वाला निकाह कि नबी अपने घर पे तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरी बेटी को तनहा छोड़ दिया जाए, मैं अपनी फातिमा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुम इस बात पे राजी हो? मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। बेटी, मैंने तेरा निकाह अली के साथ कर दिया है। ऐ मेरी बेटी, क्या तू इसमें राजी है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा, हमारा महर क्या रखा गया है? अल्लाह अकबर, महर के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि महर जो है ये औरत का हक है। अल्लाह अकबर, आज महर के ताल्लुक ही से झगड़े होते हैं। आज हमारे यहाँ जब निकाह का नंबर आता है तो महर के ताल्लुक से बातें होना शुरू हो जाती हैं। बाज जगह लड़ाई झगड़े का नंबर आ जाता है। महर कितना होना चाहिए? महर के ताल्लुक से क्या है? अल्लाह अकबर, तो सुनते चलिएगा। महर औरत का हक है और महर की 3 किस्में हैं। एक है मुअज्जल, एक है मुअज्जल हमजा के साथ, और एक है गैर मुअज्जल। हजरात, मुअज्जल जो हमजा के साथ है ये अजल से बना है, जिसके माना मुद्दत आते हैं, वक्त आता है। मतलब क्या है कि 1 महीने में हो जाएगा तो दे दूंगा, 1 साल में हो जाएगा तो दे दूंगा, 2 साल में हो जाएगा पैसा तो दे दूंगा। इसको मुअज्जल कहते हैं हमजा के साथ में। और एक है मुअज्जल ऐन के साथ, जिसका माना आता है जब तक महर दे नहीं देगा औरत को हाथ नहीं लगा सकता। और एक गैर मुअज्जल है, जिसका मतलब है कि जब हो जाएगा जिंदगी में मेरे पास तो मैं महर अदा कर दूंगा, लेकिन देना हर हाल में है। ये औरत का हक है। अगर आपने औरत का महर नहीं दिया है तो वो कयामत के दिन तुमसे अपना हक मांग सकती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, महर अदा कर देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके महर को अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये औरत का हक है, वरना वो कयामत में तुमसे तलब कर सकती है। उस वक्त कहां से पैसा दोगे? उस वक्त नेकियां देनी पड़ेंगी। इसलिए दुनिया ही में महर अदा कर देना चाहिए। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने निकाह तुम्हारा अली के साथ कर दिया है, बता बेटी तेरी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा, हमारा महर क्या रखा है? दिरहम और दीनार तो जो महर रखा गया था वो तो रखा गया था चांदी और सोना, लेकिन हजरत फातिमा तो जहरा ने देखी हम गुनाहगारों सियाकारों को कैसे फरामोश नहीं किया। हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया, फातिमा, अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा, महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है तब से लेके अब तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया है। आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग, मैं दूंगा बेटी। हजरत फातिमा ने रो के कहा, बाबा, आपसे मैं दौलत का सवाल नहीं करती, मैं आपसे पैसे का सवाल नहीं करती, मैं आपसे सोने चांदी का
سوال نہیں کرتی، میں آپ سے زر جواہرات کا سوال نہیں کرتی، میں آپ سے مکان وغیرہ کا سوال نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ مانگ کیا چاہتی ہے؟ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا میں نے آپ کو امت کے غم میں راتوں رات روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پوری پوری رات آپ کو امت کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، بابا مجھے اتنا اختیار مل جائے قیامت کے دن کہ میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں، میں آپ کی گناہگار امت کی سفارش کرا سکوں۔ نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بابا مجھے یہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن فاطمہ نام لیتی جائے جنت میں داخل میں کرتا جاؤں گا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ، عقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ، عقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، سچ یہ ہے تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات تو یہ نکاح ہونے جا رہا ہے مدینہ شریف میں، اور جب نکاح ہو گیا نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے وقت جو چادر اڑائی تھی اس چادر کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، 17 پیوند، 16 پیوند کپڑے کے اور 17واں پیوند اونٹ کی کھال کا تھا۔ وہ گھرانہ، وہ عظیم گھرانہ کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اور تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اللہ اکبر۔ اس گھرانے کا یہ حال کہ کئی کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، لیکن کوئی سائل اگر دروازے پہ آ جاتا تو وہ بھوکا نہیں سوتا تھا، اپنے گھر پہ جا کر کے اس کا پیٹ علی کے گھر سے بھر دیا جاتا تھا۔ یہ گھرانہ ہے۔ بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات، جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا آپ تھوڑا تھوڑا آگے کو بڑھیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کو موقع مل جائے۔ بڑے تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں آپ حضرات، قریب میں آئیں تاکہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، ابھی بھی مل کر کے چلنے کا وقت ہے۔ حضرات اب دیکھیں، آئے تھوڑا تھوڑا قریب میں آئیں، قریب میں آئیے، تھوڑا تھوڑا بڑھیے آپ حضرات، آگے کو بڑھیں، جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، آ جائیے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ یہ دینی مجلس ہے، یہ ادب سے بیٹھیں، مجلس کی ادب ضروری ہے، اسی وجہ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات کون فاطمہ الزہرا جب علی کے گھر میں آتی ہیں، حضرات علی شیر خدا کے گھر میں نبی جب رخصت کر رہے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کو، تو نبی نے اپنی بیٹی کو جو چادر اڑائی تھی اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت کرتے ہیں نبی اپنی بیٹی کو، کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں نبی اپنی بیٹی کو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج تم ہمارے گھر سے جا رہی ہو، کل قیامت میں بیٹی جب تیری اور ہماری ملاقات ہو تو ہم سے اس حال میں ملنا میری بیٹی، تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو۔ پتہ چلا
नबी ने शौहर की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया। और शौहर की फर्मा बरदारी कितना बड़ा नेक काम है। नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये शौहरों का मकाम बहुत बुलंद है, शौहरों की शान बड़ी बुलंद है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा और ये पैगाम दूंगा कि शौहर का मकाम, उसका मर्तबा कितना बड़ा है। जरा सोचो तो सही, उनसे पूछो जिनके सर पे शौहर का साया नहीं होता। उस औरत की ना तो ससुराल में इज्जत होती है, ना उसकी इज्जत मायके में होती है। जिस औरत के सर से शौहर का साया उड़ जाता है उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं होती है। आज शौहर पैसे कमा करके लाए, उसकी कमाई को अहमियत नहीं देती मेरी बहन। शौहर मेहनत करके पैसे कमा करके लाए, उसकी मेहनत की कमाई को अहमियत नहीं देती मेरी बहन। जरा सोच तो सही, जो गर्मी में जाकर के पसीना बहा के जो पैसे कमा के ला रहा है वो किसके लिए ला रहा है? अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो ला रहा है। जो जाकर के गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में अपना पसीना बहाता है, पूरा दिन धूप में खड़े होकर के काम करता है और जो मजदूरी मिलती है शाम को लेकर के आता है। चाहिए था तो ये कि दोनों मियां बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करते, मुसल्ला बिछा करके अपने रब की इबादत करते। मौला तूने जो हमें दिया है वो तेरा शुक्र है हजरात। लेकिन हुआ क्या, हम नाशुक्री करने लगे। हुआ क्या, हम अपने रब के फरमान को भुला बैठे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं अपनी बहनों को ये पैगाम दूंगा कि शौहर की रजा में राजी रहो, क्योंकि शौहर का साया जिस दिन सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की नजर से नहीं देखता, उस दिन कोई प्यार की नजर से नहीं देखता। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा अब तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो। कल जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। जब जब अली घर में दाखिल होने सलाम पहले तुम करना, अली तुमसे राजी रहेंगे। आज सलाम का रिवाज खत्म हो गया। आज सलाम जो है वो नबी की जो हदीस पाक है, नबी ने फरमाया है, इफ्शाहुस सलाम तीबुल कलाम इतामुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा अमल जब नबी से पूछा गया, आका सबसे बेहतर अमल क्या है? नबी ने फरमाया सबसे बेहतर अमल ये है कि मोहब्बत से बात की जाए, प्यार से बात की जाए। लेकिन आज हमारा उसूल क्या है? हम मोहब्बत से बात नहीं करते, आज हम प्यार से बात नहीं करते। कोई किसी को गाली दे के बात करता है, कोई किसी से तल्ख अंदाज में बात करता है। बात उनसे मोहब्बत से करते हैं जो पैसे वाले हैं, बात उनसे मोहब्बत से की जाती है जो रुपये वाले हैं, बात उनसे मोहब्बत से की जाती है जो दौलत वाले हैं। अगर गरीब सामने आ जाए उसे कोई सलाम करना तक पसंद नहीं करता। अगर कोई गरीब और नादार और मुफलिस आ जाए तो इंसान उससे मोहब्बत से बात करना तक पसंद नहीं करता। आज हमारा मुआशरा बदलता चला गया। हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। आज से हमने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए, आज हम परेशानियों में गिरफ्तार हो गए। आज किसी महकमे में हमारी सुनवाई नहीं, आज कोई मुसलमानों के पुरसाने हाल नहीं, आज कोई मुसलमानों से उनकी खैरियत पूछने वाला नहीं। जिधर देखो मुसलमानों के दुश्मन नजर आते हैं, जिधर देखो मुसलमानों पे जुल्म सितम करने वाले नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। जब तक हम मिल करके चलते रहे, जब तक कि हम अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म पे खड़े रहे, किसी की मजाल तो क्या जो हमारी तरफ नजर उठा करके देख लेता, किसी की मजाल तो क्या जो हमारी तरफ पूरी नजर से देख लेता। जब से हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ा, जब से हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, तभी से हम मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। याद रखो हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो नबी अपनी बेटी फातिमा को नसीहत करके भेजते हैं, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल बेटी जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मुझसे मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो।
اور نبی نے فرمایا علی کے راضی ہونے کے لیے یہ ہے بیٹی، جب جب علی گھر میں داخل ہوا کرے انہیں سلام پہلے تم کر لینا۔ آج ہم سلام جان پہچان والوں کو کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے تو دور سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے صاحب سلام، السلام علیکم، دور سے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں۔ ہم غریبوں کو سلام نہیں کرتے۔ میرے آقا کی کیا شان تھی، میرے آقا جب گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی سلام کرتے۔ ایک دن بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج اپنے پہلے سلام کریں گے نبی کو، اور ایک آڑ میں بیٹھ گئے تمام بچے، اور جب آقا اس راستے سے گزر رہے تھے بچوں نے سوچا ہم پہلے سلام کریں گے نبی کو، مدینے والے مصطفیٰ نے سب سے پہلے انہیں سلام کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم بچوں کو سلام کریں گے تو کل بچے ہم کو سلام کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہم سلام نہیں کرتے، گلی سے گزر جائیں گے لیکن سلام نہیں کریں گے۔ اے پیارے مسلمانوں، نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، دنیا میں باوقار ہو جاؤ گے۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے گا۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگا کر کے رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ ایک مکان میں، ایک صحابی نے اپنا مکان کرائے پہ دے دیا، اس مکان میں رہنے لگے۔ اور جب اس مکان میں پہنچے تو نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ، علی جب تک میں نہ آ جاؤں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا نے پانی پہ دم کیا قرآن کی آیات پڑھ کر کے، اور اس کے چند چھینٹے حضرت فاطمہ کے گریبان پہ ڈالے اور پانی پی کر کے میرے نبی نے دیا، فرمایا اسے پی لو، اور ایسا ہی علی شیر خدا کے لیے کیا۔ پھر نبی نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، میرے پروردگار ان دونوں کو پاک ستھرا فرما دے، اور ان سے جو اولاد ہو اسے بھی پاک و ستھرا فرما دے۔ یہ نبی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مولا علی شیر خدا کی شان، اب دیکھیں فاطمہ الزہرا کا مقام، دیکھیں حضرت علی کی زندگی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کئی کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر میں، لیکن کبھی نبی کی بارگاہ میں جا کر کے یہ شکایت نہیں کی کہ بابا آپ نے میرا نکاح کس کے ساتھ کر دیا، ان کے گھر میں تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا، ان کے گھر میں تو جو ہے مجھے پیٹ بھر کر کے کھانے کو بھی نہیں ملتا، کبھی یہ شکوہ نہیں کیا حضرت فاطمہ نے۔ ہمیشہ حضرت فاطمہ صبر سے کام لیتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور شان یہ تھی حضرت فاطمہ کی، سخاوت کی تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک دن میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک یہودی آ گیا، اور اس نے آ کر کے نبی سے سوال کر دیا کہ مجھ کو کچھ دیجئے۔ نبی نے صحابہ سے فرمایا دیجئے اسے کچھ۔ قبیلہ بنی سلیم کا وہ یہودی تھا۔ حضرات حضرت علی شیر خدا نے اپنا امامہ شریف دے دیا، ایک صحابی نے اپنی سواری دے دی، اور نبی نے فرمایا اس کو کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ وہاں مدینہ شریف میں کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، بڑا غربت کا دور کٹا ہے پیارے مسلمانوں۔ نبی نے فرمایا اسے کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نبی نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا لے جاؤ اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ کے مکان پہ اس یہودی کو لایا گیا اور حضرت سلمان فارسی نے کہا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اے جگر گوشہ رسول، اے فاطمہ الزہرا، نبی نے اسے بھیجا ہے، کچھ کھانے کے لیے کہا ہے، اگر ہو تمہارے گھر میں تو اسے دے دو۔ حضرت فاطمہ نے گھر پہ نظر ڈالی، کوئی چیز بظاہر کھانے کی نہیں تھی، ایک چادر تھی حضرت فاطمہ کی، وہ چادر دے کر کے سلمان فارسی سے کہا اسے شمعون یہودی کے پاس لے کر کے جاؤ، اور اس سے جو بھی پیسہ ملے اس کا غلہ خرید کر کے اس سائل کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرانہ کیسا گھرانہ تھا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ اس دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جو بھی سائل آیا ہے اس کی جھولی کو بھر دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر لے کر کے جب سلمان فارسی پہنچے، شمعون یہودی نے اس چادر کو دیکھ کر کے کہا کہ جب ان کے مذہب کا نہیں ہے، یہ یہودی ہے، اس کا پیٹ بھر رہے ہیں، تو سوچو یہ نبی سچے ہیں، ان کا گھرانہ سچا ہے۔ حضرت فاطمہ کی چادر کو شمعون یہودی ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے آج میں اس چادر کے وسیلے سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ اس سائل کو کھانے کا سامان دے دیا، اور سلمان فارسی کو چادر واپس کرتے ہوئے کہا یہ چادر
फातिमा तो ज़हरा को दे देना और उनसे कहना कि मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके साइल पे कोई मोहताज आता है उसकी झोली को भर दिया जाता है, अगर भूखा आता है तो उसे खाना दे दिया जाता है, अगर कोई प्यासा आता है तो उसे पानी दे दिया जाता है। ये हजरत फातिमा का दरवाजा है, ये हजरत फातिमा की चौखट है। एक दिन एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के हजरत फातिमा के सामने आ गई। उसके बच्चे का लिबास जो था, कपड़ा जो था वो फटा हुआ था, जो गोद में था। हजरत फातिमा का दिल भर आया उस बच्चे के कपड़े देख करके कि फटे हुए कपड़े ये बच्चा पहने हैं। इतने में उस औरत ने सवाल कर दिया, आपके बच्चों का कोई कपड़ा हो तो हमें दे दो ताकि हम अपने बच्चे को पहना दे। इमाम हसन नई कमीज पहने हुए थे, छोटे से थे इमाम हसन। हजरत फातिमा ने इमाम हसन को उठाया जो सो रहे थे, बेदार किया इमाम हसन को, उनकी कमीज उतारी और उतार करके उस औरत को दे दी और कहा कि अपने बच्चे को पहना दे, और खुद इमाम हसन को पुरानी कमीज पहना दी। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और इस दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा। तू बड़ी सखी है फातिमा, मुहसिन अली है फातिमा। लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी मेरी लाडली है फातिमा। अल्लाह अकबर। ये फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके दरवाजे पे कोई भी साइल आया खाली हाथ लौट करके नहीं गया। साइल की झोली को भर दिया जाता है, साइल की मुराद को पूरा कर दिया जाता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा देखो। एक दिन अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, थोड़ा ताखीर से आए। हजरत फातिमा ने पूछा, अली आज लेट कैसे हो गए? अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा का वाज सुन के आ रहा हूँ। नबी इरशाद फरमा रहे थे। हजरत फातिमा ने कहा, क्या फरमाया मेरे बाबा ने? हजरत अली ने कहा, फातिमा आज नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का जिक्र कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में इतना सामान दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में ये सामान दिया। ऐसी जूतियां दी थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जिस पे याकूत और जवाहिर जड़े हुए थे, और अपने दामाद को भी वैसे ही जूते दिए थे। हजरत अली शेर खुदा ने जब इतना बयान किया और कहा, अच्छा फातिमा मैं आराम के लिए जा रहा हूँ। हजरत फातिमा ने सोचा शायद हो सकता है अली ने ये बात सुनी हो तो अली के दिल में ये ख्याल आया हो कि अली शेर खुदा के घर में जो है वो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की लाडली है, शहजादी है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली शेर खुदा के दिल में ख्याल नहीं आया था, हजरत फातिमा सोच रही थी। लेकिन होता क्या है, जब अली शेर खुदा सोते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जन्नती महल है और उसके अंदर हुराने जन्नत है। हजरत फातिमा तो ज़हरा मिंबर पे बैठी हुई है और आपके चारों तरफ पंखे से हवा झली जा रही है, और एक बड़ी खूबसूरत खातून तश्त में हीरे और जवाहिरात, याकूत और जवाहिरात लेकर के खड़ी है, और वो ये सोच रही है कि फातिमा मेरी तरफ एक नजर देख ले, एक नजर फातिमा मेरी तरफ कर दे। हजरत अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा ये कौन हसीन जमील खातून है? ऐ फातिमा जो ये जवाहिर लेकर के खड़ी है, जो तश्त में याकूत लेकर के खड़ी है। हजरत फातिमा ने फरमाया, ये वही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है जिनका जिक्र मेरे बाबा ने किया है। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है जो फरमाती है कि देखो ये भी मेरी कनीज बन करके आई है। पता चला ये हजरत फातिमा वो है नबी ने जिनके बारे में फरमाया है, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लो शऊर और फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। लेकिन पर्दे का आलम देखें हजरत फातिमा की, इबादत का आलम कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का आलम यह है कि पूरी पूरी रात हजरत फातिमा इबादत करती थी। जब आप शाम को मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने के लिए खड़े होती
सर्दी की लंबी लंबी रातें होती थी, दुनिया जो है वो आराम से सोती थी। ऐसे आलम में हजरत फातिमा मुसल्ला बिछा करके अपने रब के हुजूर सजदा करती, और एक सजदा हो पाता कि हजरत बिलाल फजर की अजान देने लगते। हजरत बिलाल की अजान की जब आवाज कानों में आती, हजरत फातिमा सजदे से सर को उठाती और रब की बारगाह में कहती, मेरे परवरदिगार, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, मौला एक रात ऐसी बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके, फातिमा दिल खोल के मौला तेरी इबादत करे। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा सोचो, ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है जो पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत करती है, पूरी पूरी रात अपने रब को याद करती है, पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत में लगी रहती है। और आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? आज हमारी माँ बहनों के पास कपड़ों की बहुतात है, बहुत ज्यादा कपड़े हैं हमारी माँ बहनों के पास में। आज हमारी माँ बहनों के पास में बहुत सारा लिबास है, आज हमारी माँ बहनों के पास बहुत सारा वक्त है, आज हमारी माँ बहनों के पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज के लिए टाइम नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो अपने रब की इबादत के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरी माँ और बहनों, इस हाल में तुम कयामत में उठाई जाओ ताकि कनीज़े फातिमा बना करके तुम्हें पुकारा जाए, कनीज़े फातिमा के नाम से तुम्हें पुकारा जाए। हजरत फातिमा की अदाओं को अपनाओ, हजरत फातिमा के तरीके को अपनाओ, हजरत फातिमा के बताए हुए रास्ते पे चलो। हजरत फातिमा पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत करती हैं, पूरी पूरी रात अपने रब को याद करती हैं। आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? पूरी पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पे टाइम बर्बाद करती हैं, अपने रब की इबादत नहीं करती। हजरत फातिमा के पर्दे का आलम तो ये है कि उनके सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अक्लो शऊर और फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि आपके पर्दे की शान ये है कि सुनो प्यारे मुसलमानों, आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रमजान शरीफ की जब 3 तारीख आती है, आपने हस्बे मामूल आज काम जो करना शुरू किए हैं। आज आपने इमाम हसन और हुसैन को गुस्ल भी दे दिया, आज आपने इमाम हसन और हुसैन के बालों में कंघी भी कर दी। हजरत फातिमा ने खुद भी गुस्ल फरमा लिया है। हजरत अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, फरमाया फातिमा आज ये सारे इंतजाम कैसे? हजरत फातिमा ने कहा, जब मैं रात को सोई थी तो मेरे बाबा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया, मेरे बाबा किसी चीज को तलाश कर रहे थे मेरी चारपाई के इर्द गिर्द। मैंने अर्ज किया, बाबा आप कहाँ चले गए? मैं आपके गम में कितना रो रही थी। मेरे आका के दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के 6 महीने के बाद में हजरत फातिमा ने इस दुनिया ज़ाहिरी को छोड़ दिया, इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर लिया। हजरत गिरामी, हजरत फातिमा इतना रोती थी आका के गम में कि एक शायर ने कहा था कि सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। हजरत फातिमा के कौल को शेर में बयान किया कि मेरे ऊपर ऐसे गमों के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, अगर वो रात पे पड़ जाते तो दिन हो जाते और पहाड़ों पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अकबर, ये हजरत फातिमा ही का कौल है। हजरात मैं बताना ये चाह रहा था कि नबी की मोहब्बत में रातों रात रोती थी हजरत फातिमा, नबी को याद करके रातों रात रोती थी हजरत फातिमा। अर्ज करती है, बाबा आप कहाँ चले गए थे? नबी ने फरमाया, फातिमा मैं तुझे ही तलाश कर रहा था, अनकरीब तू मुझसे मिलने वाली है। फिराक के लम्हे खत्म होने वाले हैं और विसाल के लम्हे शुरू होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अली अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अली अब हमारी और तुम्हारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। अली मेरी चंद बातें सुन लीजिए। अली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अली अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो अली मुझे माफ कर देना। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। कहते फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। अली फातिमा तुम्हें जो है बेहतरीन लिबास में न दे सका। ऐ फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो तुम्हें कभी भी शिकम सैर होकर के खाना खाने को नहीं मिला। ऐ मेरी फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। ऐ फातिमा बताओ
क्या चाहती हो? हजरत फातिमा ने कहा अली सुनो, मेरे बाद में मेरे बच्चे हसन और हुसैन को मैंने गुस्ल इसलिए दिया था कि पता नहीं मेरे बच्चों को आने कोई गुस्ल देगी या नहीं देगी। मैंने अपने बच्चों के बालों में कंघी इसलिए की थी, पता नहीं मेरे बाद कोई मेरे बच्चों के बालों में कंघी करेगा या नहीं करेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अली मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना, अली मेरी बेटी ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अली शेर खुदा से कहती है हजरत फातिमा अली मेरे बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखते रहना, अली मेरे बच्चों को माँ की याद आए तो उन्हें सीने से लगा लेना, अली मेरे बच्चों को जब माँ की याद आए तो उन्हें कलेजे से लगा लेना, अली मेरे बच्चे माँ की याद में रोए नहीं, अली मेरे बच्चे जब भी रोए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हसन और हुसैन दीवार से हाथ लगा करके रोए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी ज़ैनब दीवारों से हाथ लगा करके रोए, अली मेरे बच्चों को रोने मत देना। ये हजरत फातिमा कहती है अली और सुनो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत फातिमा तो ज़हरा से अली शेर खुदा ने कहा फातिमा इमामुल अंबिया की शहजादी हो, बताओ तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में निकालूंगा तो मदीने के लोगों को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने कहा अली मेरे सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। ये पर्दा था हजरत फातिमा तो ज़हरा का, ऐसा पर्दा था हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी